You don't have to be positive all the time. It's okay to be sad, anxious, frustrated. It doesn't make you a negative person. It makes you human. Well, hello everyone. This is Richa Mehta, founder of a beautiful initiative, Ear to Hear. In last 1 year, we have completed 1200 plus sessions, online and offline. Come and join us in overcoming the stigma of mental health. We are expanding in all cities and states. You can represent your city for us. Please email your profile on the below mentioned email ID. We are looking forward to hear from you. Thank you. Today, I'm here again with two beautiful guests, two beautiful divine souls who would be discussing about the mental health issues, what we go through in our day-to-day life. I would like to invite my first guest, Ms. Shreya Katyal. She is the founder of Cafe Dil Ki Awaaz, journalist, author, and a motivational speaker. Welcome, Shreya. Welcome Namaste. on the platform of Ear to Hear. Our next guest, Pratibha R. Joshi. She's an Thank you, ma'am. educator, lifelong learner, owner of Pratibha Institute and Pratibha Creativity Group, coordinator. Then she's also director of Vectro Infra and Minds Private Limited. And currently she is working where her heart is, where her passion is. She's Actually, working as an educator. Although she yes. started her career from banking. Wow, amazing, Pratibha. Glad to have you here. Thank you so much Thank you. for being on the platform of Ear to Hear. When we talk about mental health, a lot of things come in our minds. But before I discuss from my end, I would request Shreya and Pratibha to one after the other. You can speak about what exactly comes in your mind when we start talking about mental health. Yes, Shreya. So, first of all, thank you so much for giving me this platform to express my thoughts on a very significant topic, which is mental health. And it's an amazing initiative taken by Richa ji. So, kudos to Ear to Hear organization. And I wish that you keep on, walking in the corridors of eternity and taking this initiative forward further, keep growing. So, when we talk about mental health, which is a very very significant issue, and we all go through this, we all go through a phase of depression in once in a lifetime, right? So the idea is that as Dale Carnegie said, that while dealing with humans, we are not dealing with the beings of logic, we are dealing with the beings of emotions. So we are a bundle of emotions, हम सब emotions से बने हैं, emotions के लिए सब कुछ कर रहे हैं, और जब हम too much logical हो जाते हैं तो हम I think machines बन जाते हैं. We become living bodies with a dead soul. And here where mental health plays a very significant role. So जब आपकी body, mind और soul sync में है, और जैसा महात्मा गांधी ने कहा कि हैप्पीनेस का अल्टीमेट मंत्र ही वही है कि योर बॉडी माइंड एंड सोल शुड बी इन हार्मनी, तब आपकी वो मेंटल हेल्थ मैं कहूंगी इंटैक्ट है. सो द रीजन वाई वी आर डिप्रेस्ड इज कि हम सोच कुछ रहे हैं, करना कुछ और चाहते हैं, बोल कुछ और रहे हैं, और इतना ज्यादा कंफ्यूजन और क्योस हो रहा है हमें अपने लिए और औरों के लिए कि हमारा सब कुछ गड़बड़ हो रहा है. एंड वहां पे हमारा फोकस भी नहीं लग पाता है, फिर हम प्रेजेंट में नहीं रह पाते हैं. सो मैं थोड़ी शेरो शायरी भी करती हूँ, और एक छोटा सा मैं मंत्रा मतलब बिलीव करती हूँ इसमें. लॉर्ड बुद्धा ने भी कहा है दैट इफ यू वांट टू बी हैप्पी यू शुड लर्न टू लिव इन प्रेजेंट. तो इस पे दिल की आवाज ने एक अर्ज किया था कि कल जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा, कल जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा, कल जो होना है हो ही जाएगा, मगर इन दोनों की फिक्र में बंदे तेरा आज कहीं खो जाएगा. सो आप दुखी क्यों हैं? या तो आप पास्ट का सोच रहे हैं, अरे यार कितना क्या हुआ था. अब पास्ट अच्छा हो या बुरा हो, दोनों ही दर्द देगा. अच्छा था तो कहेंगे काश अभी क्यों नहीं है, बुरा था तो हाई क्यों था. और फ्यूचर जो है, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं तो अच्छा फ्यूचर एक्साइटमेंट देगा, रुक ही नहीं पाओगे, प्रेजेंट नहीं जी पाओगे, कब आएगा कब आएगा कब आएगा. और बुरा फ्यूचर फियर क्रिएट कर देगा. अब कोई बाबा जी ने बोल दिया तुम्हें हार्ट अटैक आने वाला है परसों, तो वो जो आज है ना वो भी खत्म, परसों हार्ट अटैक आएगा, शिट, तो फियर में जियोगे.
सो पास्ट और फ्यूचर दोनों ही इल्यूजन है, प्रेजेंट एक गिफ्ट है, उसको जी लो, जो होना हो तो हो ही जाएगा. सो दीज काइंड ऑफ short things will keep your mental health intact and you can live in harmony. That is what I believe. Wow, Shreya, amazing. I agree with each and every word of what you said and resonate with that. I think Pratibha will also resonate that Thank you. yes, your heart, body, and mind has to be in sync, and you must be living in present. So coming to, as Shreya ji has actually nailed it by saying we have to live in presence. Don't bother about future or past. Like for example, for the students, especially in the student life, children are worried about their future. Like once they come to SSLC or when they are in ninth standard, they start planning for their future, and students plan for something, their parents also plan for something. So if it is matching, then it is really wonderful. If it is not matching, then there arises the stress in both the ends, parents as well as students. So this situations lead both the parties, like I can say the parents as well as the students, might go under stress, they might go under mood swings or irritations. All these ultimately end up with mental health. What can be the reasons for these, you can say, attributes which we see in people, which actually leads to the mental problems? See, there can be many reasons because जैसे दो अलग अलग पौधे हैं, दो अलग अलग फ्लावर्स हैं, उन सबको अलग अमाउंट ऑफ सनलाइट चाहिए, अलग अमाउंट ऑफ पानी चाहिए, ठीक है, अलग सॉइल चाहिए ग्रो करने के लिए. उसी तरीके से हम ह्यूमन बींग्स दिखते सेम होंगे कि दो आंखें, एक नाक, एक मुंह है, दो कान है, बट सबकी अलग विल पावर है, अलग उनका झेलने का या पेशेंस का स्कोप अलग है, इमोशंस अलग है, नीड्स अलग है, डिजायर्स अलग है. तो हर एक का ट्रीटमेंट भी अलग है. अब हमें क्या होता है कि वी ट्राई टू सी द अदर पर्सन फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव. मैं कर सकता हूं तो ये क्यों नहीं कर सकता. एक सेंटेंस जो ईना जी को बहुत मतलब इजीली ले लेंगी वो मेरा, वो ही शायद प्रतिभा जी को बहुत बुरा लग जाए. सो वी ऑल आर डिफरेंट. सेंटेंस तो सेम था, श्रिया भी सेम थी, बट दोनों का स्टेट ऑफ माइंड अलग था. सो यही सबसे बड़ा रीजन है कि लोग डिप्रेशन में क्यों हैं या वो हर्ट क्यों जाते हैं, बिकॉज द अदर पर्सन इज नॉट एम्पथेटिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल नीड टू बी एम्पथेटिक. कहते हैं कि किसी को, मैंने एक शेर लिखा था, अर्ज किया है, दिल की आवाज कहती है, किसी को जानने के लिए जरा खुद को भुलाना पड़ता है, किसी को अपना बनाने के लिए जरा किसी और में समाना पड़ता है. वाह, सो बहुत खूबसूरत. वी नीड टू बी एम्पथेटिक. हम लोग अपने आप से पहले निकल के देखिए और सामने वाले के एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज देखिए और उस तरीके का ट्रीटमेंट उसको दे जो वो चाहता है. अब जब डिजायर्स पूरी होंगी, एक्सपेक्टेशंस पूरी होंगी सामने वाले की, तो वो खुश रहेगा. हर्ट क्यों होता है? क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरी होती. छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर आपके पेरेंट्स हैं, उनको पसंद है कि आप उनके साथ 1 घंटा आके बैठो और आपको अपना मी टाइम चाहिए, तो आप उनको अगर खुश करना चाहते हो और चाहते हो कि उनकी मेंटल हेल्थ बैलेंस में रहे, तो आप 1 घंटा रहो अपने इमोशन के कॉस्ट पे वहां पे. और वही वाइस वर्सा है कि अगर पेरेंट को पता है कि बच्चे को खुशी क्या देगा, उसका स्पेस, तो वो अपनी नीड साइड ट्रैक करके वो स्पेस दे दें अगर वो अपने बच्चे को खुश देखना चाहते हैं. तो इसी तरीके से बैलेंस है लाइफ का. हर रिलेशनशिप में कभी सही गलत कोई नहीं होता. कभी आप सुनते हो किसी की, आप थोड़ा झुकते हो, कभी सामने वाला झुकता है और रिलेशनशिप चलता है. सो इससे मेंटल हेल्थ भी बैलेंस रहेगी अगर सब खुश रहेंगे, एक्सपेक्टेशंस मीट होंगी. सेकेंड रीजन, I would say that we are getting disconnected to the real environment, the nature, which is the biggest healer. We are made from 5 elements. हम लोग उन 5 तत्वों से बने हैं और जब तक हम उन 5 तत्वों के आसपास नहीं रहते, उनका फील नहीं लेते, then we cannot live. We are just living like a dead body, dead soul. In your living body, you are dead. So you need to be in the sunlight, you need to be amongst the plants, you need to touch the soil, the floor. धरती माँ कहते हो आप. So आज हार्डली कोई होगा जो धरती पे सोता है. We all have beds, but you need that touch because actually it is giving
द पावर टू योर सोल. वो कंपैशन, वो प्रोटेक्टिवनेस फील होती है, बट कुछ कोई सोता ही नहीं है. तो वो जो डिस्कनेक्ट आप हो रहे हो धीरे धीरे नेचर से, रियलिटी से, वो भी हमारा कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड को और हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, जो हमें पता नहीं है क्योंकि हमें अवेयरनेस ही नहीं है. जो हम ये पहले के जमाने की बातें कर रहे हैं, तो वो लोग बहुत कनेक्टेड थे नेचर से, एनवायरमेंट से, और बच्चों को भी वही सिखाया जाता था. आज कौन सी गेम्स हैं जो बच्चे खेलते हैं? खो खो, पिट्ठू, पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई. आई डोंट नो, दे डोंट इवन नो द नेम्स. They know Dragon Ball Z, they know video games, they know this, they know that, they know racing. Yeah, so that is making them robotic. वो चाह के भी इमोशंस को फील ही नहीं कर पाते. अब आप किसी को इमोशन तो वही बताओगे ना जो उसके अंदर है. अगर उनके अंदर वो सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो आप कैसे डाल लोगे और कैसे आउटपुट एक्सपेक्ट करोगे? True. They have not felt that. अगर किसी ने कभी रोटी खाई है तो उसको रोटी का फ्लेवर पता है, किसी ने पिज्जा खाया तो उसको पिज्जा का फ्लेवर पता है. अब जिसने पिज्जा खाया ही नहीं उसको आप कैसे समझाओगे कि यार पिज्जा ना चीजी होता है, इट्स सो टेस्टी. सो दे डोंट नो दैट फीलिंग. एंड उसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि बच्चों का फॉल्ट है, उसमें पेरेंट्स का भी फॉल्ट है, बिकॉज दे आर टू मच इनटू देयर वर्क. पहले के पेरेंट्स जो थे ना, वो बैठते थे अपने बच्चों के साथ, उनको पिकनिक्स पे लेके जाते थे. आजकल पेरेंट्स भी उतना एफर्ट, ये नहीं कहूंगी कि करना नहीं चाहते, कर नहीं पा रहे, क्योंकि लाइफ इतनी ज्यादा वो हो गई है. एवरीबडी इज कंपीटिंग विद वन अनदर, दे नीड टू अर्न अ लिविंग. तो अब नेक्स्ट जनरेशन तो वैसी होगी जैसी प्रीवियस जनरेशन इम्पोज करेगी. और थोड़ा सा पेरेंट्स डरने भी लगे हैं बच्चों से कि प्रीवियस जनरेशन से ही नेक्स्ट जनरेशन सीख रही है. We at times tell our children कि they are not good, they are disrespectful, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये सारी चीजें they are imbibing from the generation which is currently in front of them. अच्छा, एक चीज agree with you, Shreya. मैं एक बहुत लॉजिकल ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी एक चीज मेंशन करना चाहूंगी यहाँ पे, विच इज अ सोल्यूशन ऑल्सो, दैट आप सिर्फ अपने बच्चे को ये नहीं बोल सकते कि तुम एग्रेसिव हो. ठीक है, आप कोई भी अगर स्टेटमेंट दे रहे हो तो उसके साथ उसका सोल्यूशन दो. You cannot say a blank pinpoint statement or a personal attack कि तुम बड़े बदतमीज हो, तुम बड़े एग्रेसिव हो. Tell them, बेटा ऐसे बात नहीं करते, इसका ये रिपरकर्शन होगा. So, अगर आप किसी भी इंसान को कुछ बता रहे हो जो उसके लिए फायदेमंद नहीं है और वो उसको कैसे इफेक्ट करेगा, तो वो क्यों उसको अप्लाई नहीं करेगा? Nobody wants a bad life. So, rather than giving a personal attack or just a statement, please give a solution and a logic. Children are finding a logic to something. They are not rebels, but they need answers. Why? And which is very good. That means an active brain. Absolutely agree. Absolutely agree. So if you are not giving a logic, that means it's dictatorship. And nobody likes to be dictated. So the fault is not from one side. It has to be from the both the sides. And I would just say that third reason yahin se crop up hota hai, which is lack of communication. That is the biggest reason for a distorted mental health. आप अगर लड़ते हो, पता है, लड़के कभी भी घर के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए के ऊपर कि लड़े और अपना रूम में चले गए. That will just, enhance the problem. कभी कभी इंसान सामने वाला वो बोलना भी नहीं चाहता जो हम अपने बारे में सोच लेते हैं कि वो बोलना चाहता था. So it is very important to, gracefully tackle the disagreement. I've written a quote that don't divorce the relationship, divorce the disagreement. So talk where the problem has been gone wrong. Be logical because we all are educated and civilized people. So why can't we discuss? अब जैसे हमने बात करी कि दो flowers अलग हैं, they are different, needs are different. Two human beings are also different, but they can strike a balance. They can sit and talk. So the problem arises because of lack of communication. Once we have a disagreement, we take it on our ego and we stop talking. And वो चीज अंदर ही अंदर मेंटल हेल्थ को और खराब कर देती है, बिकॉज जैसा हमने कहा कि वी आर सोशल बीइंग्स. आई विल नेवर लाइक टू हर्ट यू, बट अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है और मैं कम्युनिकेशन बंद कर देती हूँ तो रिलेशनशिप गया और मेरे को गिल्ट अटैक तो हो गई, बिकॉज वी ऑल नीड लव एंड वी वांट टू गिव लव. Nobody likes to be hated or to hate. So lack of communication is a very big reason, one more reason
for a bad mental Shreya, health. before you go ahead, I would like to ask on this communication part only here. If you ask today's parents, they would say, my parents never used to talk so much. Also, I speak so much to my children, and I'm so connected with my child. I know everything what my child is doing. I'm supporting him in the studies. I'm supporting him wherever financial requirement is there for the extra curricular activities. So they are not ready to accept that they are not communicating. What exactly is missing, do you think? Idea is to spend a quality time first of all. There is a silent communication also. पहले के जमाने में बच्चे और माँ बाप इतना बात नहीं करते थे, बट एक आंख का इशारा काफी होता था, रिस्पेक्ट थी, खुश थे, फैमिली ओरिएंटेशन थी, और एक वो बायोलॉजिकल साइकिल हमारा जो बना हुआ है कि पहले बच्चा होता है, वो सीखता है पेरेंट्स से, ठीक है, ग्रो करता है, सब कुछ आ जाता है उसको, इंडिपेंडेंट होता है, फिर उसके बाद पेरेंट्स वीक हो जाते हैं, वो बच्चे बन जाते हैं, तो उस इंडिपेंडेंट बच्चे का दायित्व होता है कि अब अपने पेरेंट को ग्रो करे. तो ये लाइफ साइकिल बना हुआ है, और तभी इंडियन सोसाइटी बैलेंस्ड है. अब इंडियन सोसाइटी क्या है, वो वेस्टर्न होना चाह रहे हैं, इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं, इंडिविजुअलिस्टिक होना चाह रहे हैं, और चाहते हैं कि खुश भी रहें. आपको पता है वेस्टर्नर्स 90% लोग वहां एंटी डिप्रेसेंट्स पे जीते हैं क्योंकि बॉन्ड्स ही नहीं है. तो अब आप ऐसे कर रहे हो तो फिर रिपरकशंस भी तो वही मिलेंगी ना. तो ये जो क्वेश्चन आपने अभी पुट किया, सिचुएशन पुट किया, उसमें द रीजन इज दैट एवरीबडी knows whether a child or any individual knows कि उसकी अंदर की, I would say, दिल की आवाज क्या है, right? So maybe we are seeing somebody दूर से, but हम उस बंदे से ज्यादा अच्छा नहीं बता सकते कि उसको क्या चाहिए. So the idea for a balanced relationship is suggest, don't impose. It's very good to suggest, it's very good to suggest, but imposition is toxic. That is again feeding your ego कि मैं पेरेंट हूं, मैं बताऊंगा, मुझे पता है. आपको अपने सिचुएशन से और अपने एक्सपोजर से पता है. जरूरी नहीं है कि जो कैपेबिलिटीज आप में है वो आपके बच्चे में भी हैं. उसका एनवायरनमेंट अलग है, वो स्कूल जाता है, 100 लोगों से मिलता है, उसके इंटरेस्ट अलग है, उसने कुछ और अपना, और कुछ, मगर मैं तो स्पिरिचुअल हूं, तो आई बिलीव इन पास्ट बर्ड्स एंड ऑल ऑल्सो. तो कुछ टैलेंट्स हम अपने पिछले जन्म से भी लेके आ रहे होते हैं. कहते हैं ना कि अरे यार ये तो इतना छोटा बच्चा, इसने ऐसी बात कैसे कर दी, इसने सीखा थोड़ी है. तो वो सबकॉन्शियस में जो अवेयरनेस है, जो विजडम है, वो अपने आप चैनलाइज हो जाती है. सो ऐसी बहुत चीजें हैं जो पेरेंट होके भी आपको नहीं पता हो सकती. तो आप अपने बच्चे को सजेस्ट जरूर करो, बट इम्पोज मत करो. सो दैट This is a very विल good स्ट्राइक अ thing, बैलेंस. Shreya. Impose and suggestion. These two words, Imposition. I think parents should know that they should never impose things, but they should always suggest. आधी प्रॉब्लम्स यही मुझे लगता है सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी. और ऊपर से इना चाहिए एक और चीज है कि हम लोग ना अपने एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं. मैं मानती हूँ कि सारी गलतियां एक जिंदगी में हम खुद नहीं कर सकते हैं. वी शुड लर्न फ्रॉम अदर्स विजडम एंड एक्सपीरियंसेस. बट कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो हम कहते हैं ना कि गिर के ही बच्चे को पता चलता है खून क्या होता है, दर्द क्या होता है. अब आप उसको कभी नहीं गिरने दोगे तो उसको पता ही कैसे चलेगा. एंड लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस. तो थोड़ी बहुत गलतियां करना तो बनता है, बट ठीक है, पहली बार करो तो गलती है, बार बार वो सेम गलती करो तो बेवकूफी है. तो वी आर नॉट बेवकूफ, बट लेट अस एक्सपीरियंस लाइफ, लेट द चिल्ड्रन ऑल्सो एक्सपीरियंस लाइफ. श्री श्री रविशंकर जी ने भी बोला है गलती करो, इट्स वेरी गुड बिकॉज दे टीच यू, बट डू डिफरेंट मिस्टेक्स एवरी टाइम. डोंट डू द सेम मिस्टेक. सो दैट इज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड मूव ऑन. या जिराफ भी है. अब जिराफ का एग्जाम्पल है. जिराफ का जब बेबी होता है तो वो सीधा ना अपने बच्चे को लात मारता है. तो द बेबी शॉक्ड कि लात क्यों पड़ी. फिर वो जैसे ही खड़ा होता है बेबी, वो एक और लात मारती है मदर. तो सेकंड लात में वो समझ जाता है कि मुझे चलना सिखा रही है, वरना तो शेर चीता सब खा जाएंगे. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द एक्सपीरियंस. I think here one word is coming up in my mind, that is empowering your children. या एग्जैक्टली. When you So that's allow the them way. to fall down, they will get empowered. They will know how to Right. get up when you are not there around. Give them a support ki theek hai, experience your life and I am there at your back to support you, watching you from afar, but I'm supporting you in your decision because it's your life. So they won't get into that insecurity zone also कि मैं अकेला हूँ, माँ बाप ने तो मुझे मतलब गुस्से में बोला है कि कर ले जो करना है. It should be with that compassion that we are supporting you. It's your dream, it's our dream. Yes, here I remember that Three Idiots
movie where I think the photographer friend was actually, when he got the support from the father, he was on the top of the world. Otherwise, it was insecurity, failure, tension, stress. I think Three Yeah, Idiots is a very good movie to discuss about the stress and tensions in our life. एक पॉइंट इसी से निकल के और आता है, विच इज दैट मैं एक स्टेटमेंट हमेशा बोलती हूँ, दैट बहुत ज्यादा बदनसीब, आई वुड यूज द वर्ड बदनसीब, बहुत ज्यादा बदनसीब होते हैं वो टीचर्स और वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों से compete करते हैं. ऐसे बहुत That's केसेस right. हैं जहां पे अगर बच्चे थोड़ी आगे होते हैं या मेंटर से आगे कोई बच्चा होता है तो वहीं पे कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है कि तू तो मेरा बच्चा है, तू क्या, मतलब जैसा भी कंपटीशन, कोई बात Yes, का हो गया, yes. कोई Sometimes we have प्रोफेशन का. seen those cases. Very हाँ true. ठीक है. तो Again, वो this is one of the reason for the mental stress amongst Right. children, teachers, and also the parents. They do अच्छा, it unnoticingly, but hota hai. Agree. हाँ, तो ऐसे जो टीचर्स और मेंटर्स और पेरेंट्स होते हैं ना, वो बहुत बदनसीब होते हैं, क्योंकि हर जनरेशन, हर नेक्स्ट जनरेशन शुड बी 10 times ग्रेटर देन द प्रीवियस जनरेशन. ठीक है, ये नेचर का रूल है. और अगर आपका बच्चा आपका प्रोडक्ट है, योर नेक्स्ट जनरेशन, तो अगर वो प्रोडक्ट सुपीरियर है तो आपकी महानता है या इंफीरियर है? Superior. आप खुद सोचो ना. And mostly we find that the next generation is always sharper because of lot of facility, availability of the things, new innovations are coming up. Exactly. So That is the law of every nature. generation is smart, I would say. It should be like that. अब मेरे जो स्टूडेंट्स होंगे जिनको मैं गाइड कर रही हूँ, ठीक है, वो मुझसे ज्यादा स्मार्टर होने चाहिए, क्योंकि जो मैंने नॉलेज दी है वो उसको पॉलिश कर रहे हैं और इम्प्लाई कर रहे हैं. And उसमें They should win in the competition actually. From them. Right. Absolutely. लास्ट पॉइंट है, वो है एक स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर बाइंग थिंग्स व्हिच दे डोंट नीड टू शो टू दोज पीपल हु डू नॉट मैटर. You are running after the things that you don't need, जिनकी आपको जरूरत नहीं है, टू शो टू दोज पीपल हु डू नॉट मैटर इन योर लाइफ. तो ये जो शो ऑफ वाली चीज है ना, शो ऑफ वाली चीज, दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग रीजन फॉर अ डिस्टॉर्टेड मेंटल हेल्थ. क्योंकि आपके पास शायद उतने पैसे भी नहीं होंगे और आप जाओगे 5 स्टार में वो सेल्फी पोस्ट करने फेसबुक पे उन लोगों को दिखाने के लिए जो मैटर भी नहीं करते, और फिर घर आके सोचोगे oh shit, मैंने इतना क्यों खर्च दिया. Without empathy, I don't think so we'll be called as humans. That's what I feel. So these are like what coming to the aspect of communication. Parents, like Shriya ji was telling, parents impose things on the children. Like parents think that they actually make the child to grow in a nutshell. They have planned everything for their child. Even the child, I feel sometimes they have planned when the lady gets conceived, she plans for the complete future of the child. So she feels that the child, if it is a girl child, she has to be a doctor or maybe some celebrity, or if it is a boy child, then it is an engineer. So they have jotted everything before the child is seeing actually the world, before the child is hearing the world. Mental health or mental illness or mental challenges, I can say, these definitely will have some behavioral changes. The person who is suffering from mental illness or these aspects will start eating lot or may not eat. Either it is not balanced because the mental health is not balanced. He may not sleep properly, or the person might sleep more. They get irritated all of a sudden if anything is told to them or asked to do, or they sit quiet thinking on the past memories. I think nuclear and joint families have also done the hampering here, because most of them are staying without their grandparents. Children are more attached to the grandparents, but if the grandparents are not there, then there is no there is no connectivity. Grandparents would have told them many stories, like the past stories, their मतलब घराने का पूरा history बताते थे and all, which the child might feel proud about. लेकिन ये सब तो नहीं होता है ना अभी, तो इसके वजह से value addition happens due to these moral stories.
which we Yes, learn from the yes, grandparents. They not only tell about yes, the family histories, but yes. also n number of stories. I still remember I have eaten head of my especially grandmothers before Uh-huh. sleeping. Tell me the Yes, story. One story we must have heard n number of times, and every time the ending changes. It yes. used to change with different moral coming out every time. So I think those still they give shape to our personality what we are today. For Yeah. the message for the parents is, for mental health of your child, you have to find out time, not the money but the time, which will actually solve your problem. एक शेयर अर्ज करना चाहूंगी. बिल्कुल कीजिए इरशाद. ये उन लोगों के लिए जो मतलब रिलेशनशिप्स को बैकसीट दे रहे हैं बिकॉज ऑफ बीइंग टू मच मटेरियलिस्टिक एंड रनिंग आफ्टर मनी. सो इस पे अर्ज किया था. दिल की आवाज कहती है, अर्ज किया है, पैसे की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए. पैसे की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए, मगर अपने कहीं पीछे छूट गए क्योंकि कमाते कमाते जमाने निकल गए. वाह. जिनके लिए कमा रहे हो उनके लिए वक्त भी निकाल लो उन पे खर्चने के लिए, वरना यू डोंट नो Absolutely. वो. आजकल देखो, कल का क्या पता. जनरेशन गैप विल ऑलवेज बी देयर. द आइडिया इज नॉट टू हैव द सेम टॉपिक्स. द आइडिया इज ओनली टू शो योर केयर एंड कंसर्न. दैट कैन ओनली बी डन. वो इतने से भी हो सकता है कि भाई घर से बाहर से अगर बच्चा या बड़ा कोई भी आए उसको एक गिलास पानी का पकड़ा दो, वही दिख जाएगा यू केयर. यू डोंट नीड टू हैव टॉपिक्स टू डिस्कस बिकॉज वो कभी सेम नहीं होंगे. मेरी जनरेशन की प्रॉब्लम्स अलग होंगी, आपकी अलग ही रहेंगी. उसको जनरेशन गैप कहते हैं. Yes. And if तो you वो कभी just नहीं give होगा. them hug also, just hug them, You I don't. think half the problems are done. Right. They You know just how need to to express handle it. love. Express Yes. love. बच्चे के साथ बच्चे बनो. I was talking about age group of 35 and 40 ladies, because हाँ children जी. have grown up. Now they feel very lonely. Although things are same. बच्चे भी हैं, husband भी है who is regularly, who was going for the work before also and now also. Things have not changed. Family, husband mostly they ask, अरे फर्क क्या पड़ा है शादी के बाद? मतलब पहले भी बच्चे उतने ही थे, अभी भी उतने ही हैं, काम भी उतना ही है, same things are there. Why do you feel lonely? What's wrong? They can't understand what's going on with the lady at that time. And any lady finds it very challenging from 40 to 50. She goes into the depression during this time. She goes into the loneliness at this time. So I would like to ask you why this is happening and what she can do to improve this. What I feel is ये ladies का जो रहता है, they get a lot of changes in their physical body also. That also matters. तो वो उसमें तो वो चलता रहता है because of the physical changes, as well as the child grows. and ये teenagers का जो problem रहता है, me time चाहिए जो मम्मी के साथ नहीं spend कर सकते. और ये husband का जो रहता है वो peak hours रहते हैं, वो कुछ अच्छे position में रहते हैं और उनको wife के साथ spend करने को time नहीं मिलता है. So all these matter to this lady, and that's how she feels lonely. And I feel during this time it's the time for her. It's her time now. Like, she has to develop her habits, what she had left long back for the family. That's what I feel. Like, she has to take up those initiatives which she had left it long ago for the families and for her children, for the development of her husband, all these things. See, what I believe is that एक चीज थी कि सुनाओ उसे जो सुनने के लिए तैयार हो. जिसने तुम्हारी नहीं सुननी उसके लिए तुम बेकार हो. So the thing is that you cannot make other people understand your feeling also. अब जैसे अगर मैं शायर हूं तो बहुत लोग होंगे जो राइटर्स होंगे, सेंसिटिव होंगे, उनको बड़ा मजा आएगा सुन के. जो बहुत लॉजिकल होंगे वो कहेंगे क्या बकवास कर रही है, चुप हो जाए यार, इतनी फिलोसॉफी क्यों झाड़ रही है. हर तरह का बंदा अलग है. जरूरी नहीं है कि आपका अगर हस्बैंड है उसकी और आपकी इंटरेस्ट भी सेम है. हस्बैंड है, नेचर जरूरी थोड़ी सेम होती है. और बच्चे हैं, उनकी नेचर अलग है, उनकी इंटरेस्ट अलग है. अब आप अगर जर्मन में बात कर रहे हो और सामने वाले को सिर्फ इंग्लिश या हिंदी आती है तो उसके लिए तो आप कर रहे हो ना. तो वही इमोशंस का और बात का भी कंसेप्ट है. करेक्ट. तो कॉमन इंटरेस्ट नहीं मिलते. एंड दूसरा, लोनली
वो बंदा फील करेगा जिसमें खुद में स्किल्स नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो एक्सटर्नल मोटिवेशन ढूंढ रहा है, हर वक्त सपोर्ट ढूंढ रहा है. सॉलिट्यूड और लोनलीनेस में ना बहुत फर्क है. A person who's wise, a person who's full of skills, a person who's full of knowledge would always crave for solitude, because solitude में आइडियाज आते हैं और क्रिएटिविटी आती है. जब मैं किसी से बात कर रही हूँ 24 घंटे तो मैं कुछ रचना नहीं कर सकती. आई कैन नॉट क्रिएट समथिंग. आई नीड सॉलिट्यूड. लोनली आप तब फील करोगे व्हेन यू आर डायरेक्शनलेस. यू डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट. यू आर अलोन. Shreya, I Right. think you So- have given the point here. You are lonely when you are directionless. Right. So what I would like to say is that whether it's any age and especially the age of these ladies, ये सबसे पहले तो सबसे बड़ी गलती अपनी मिड एज में ही करती हैं कि अपनी हॉबीज को, अपने इंटरेस्ट को जीरो कर देती हैं. They start identifying their life with their husband और child's life. क्योंकि बच्चे ने तो अलग होना ही है, बड़ा होना है, उसने अपनी जिंदगी जीनी है. हस्बैंड विड ऑलवेज बी अ ब्रेड अर्नर इफ शी इज अ हाउसवाइफ. तो घर में पैसा कैसे आएगा अगर हस्बैंड घर पे बैठी और आपको पैम्पर कर रहा है? तो उनकी भी कोई गलती नहीं है. सेकेंडली, आपको अपने जो स्किल्स है ना कहीं रखने चाहिए. जैसे कुछ भी करो जो आपकी डोपामिन्स को और हैप्पी हार्मोन्स को जनरेट करे. आपका जो माइंडसेट है, खाली दिमाग शैतान का घर, वो प्रोडक्टिव रहे और आप इन्वॉल्व रहो. You cannot hamper somebody else's journey in life or their career or their growth कि मेरे साथ बैठो, मेरे साथ बातें करो. That becomes toxic. तो आप कुछ भी करो, अपना स्किल डेवलप करो, कोई अच्छी बुक पढ़ो, कोई अच्छा सीरियल देखो, अपनी लाइक माइंडेड पीपल की कम्युनिटी बनाओ. देयर एन नंबर ऑफ थिंग्स. पहले तो चीजें भी नहीं थी, इतनी ऑप्शंस भी नहीं थे. आज तो सब कुछ है सबके पास. मतलब आजकल कोई लोनली होने का रीजन नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ. Then children are growing up, they have their own circles, but in this process we ladies have forgotten to create our own circle. Your identity. So coming to the logic, agree. Coming to the logical aspect, I would just say that it is very important to be emotional, to be sensitive, right? But at the same time, it is very, very important to be sensible also. Because after all, your life is running through that sensibility, that money which is coming in your home also, na? कोई अच्छी बातें सिर्फ करके अपना पेट नहीं भर सकता. So the balance has to be, maintained in the house. Understanding, respect is the biggest factor. I always believe that अगर आप किसी की नीड पूरी नहीं भी कर सकते हो अपनी लाइबिलिटीज की वजह से, एटलीस्ट आप उसकी इमोशंस की रिस्पेक्ट कर सकते हो. उतने में ही वो खुश हो जाएगा. चाहे आप उसका काम नहीं कर सकते. अगर कोई हस्बैंड एग्जाम्पल है, वो नहीं टाइम दे पा रहा है, तो वो अपनी वाइफ को ये मत बोले क्या बकवास करते रहते हो, तुम्हें बोला है ना. मतलब यू डोंट हैव टू बी रूड. You can just simply say, yeah, I respect your emotions, you need my time, I'm so sorry darling, but after all I'm earning from you and your kids only, so that would make things very better. Absolutely. And I think when the wife would not be in depression, then I think home environment, home vibrations would also be positive. And even the cooking is done by the homemakers, the wives. Okay, so the water and the food, they're receptive to the energies, the mindset a person is carrying. So if a woman is cooking with frustration, depression, anxiety, all those feelings are going into your Passed food. on to the food. Absolutely. Exactly. Agreed. Now this is a very good input. Love and respect can save any relationship. Some things can never be mended. जैसे वो दोहा है ना कबीर का कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए. So कुछ रिलेशनशिप्स तो होते हैं जो हम कभी गिव अप कर ही नहीं सकते, like our parents, our children. बट कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें एक बार गांठ पड़ जाए तो उसको खींचने की जरूरत नहीं होती, वो और टॉक्सिक हो जाते हैं. सो इट्स बेटर कि अलग अलग खुश रहो rather than साथ रह के रोज एक दूसरे को और टॉक्सिक करो. How to resiliate back from the failure, because failures are part of life. You cannot move ahead without failures. So Pratibha, what is your say on this? एक स्टेपिंग स्टोन रहता है. वहां पर जब फेल हो जाते हैं बहुत सारे लोग हमें ऐसे टॉन्ट मारने लगते हैं कि हाँ तुम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, यू आर नॉट गुड, यू आर गुड फॉर नथिंग. ऐसे सब लोग बोलने वाले बहुत सारे लोग हमारे सराउंडिंग रहते हैं. लेकिन देयर विल बी समबडी हु विश गुड फॉर अस. तो वो लोग भी एडवाइस करते रहते हैं कि नहीं बाबा ऐसा हुआ तो ठीक है, तो तुम
अभी आगे ऐसे शायद करोगे तो you might get success. So there are some Absolutely. and also like you have to train yourself. अपने दिमाग से, अपने mentally, अपने मन से आपको like you have to decide that you have to become successful. It's all about your mindset. There are two type of people. One is a winner mindset and one is a loser mindset. So like मेरी डिक्शनरी में फेलियर जैसा वर्ड ही नहीं है. Either you succeed or you learn. इसमें एक बहुत True. महान एग्जाम्पल भी है एडिसन का. उन्होंने बल्ब बनाया, ठीक है. तो किसी ने, एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि 10,000 बार आप बल्ब बनाने से पहले फेल हुए हो, आपको Actually. कैसा लगा, राइट? सो उन्होंने बोला, फेल, मैं फेल नहीं हुआ हूं, मुझे वो 10,000 तरीके आए हैं जिससे बल्ब नहीं बनता. Correct. That's the way to look So at the correct. things. So Glass that is is half full, glass is half empty. that is called a winner mindset. And when you are trying to find somebody who's going to listen to you or console you, पूरी जिंदगी निकल जाएगी. Please be self-motivated. Yes, If you are this going is to another find thing. external motivation कि मेरे father मुझे inspire करे, मेरी teacher मुझे inspire करे, मेरा friend मुझे inspire करे, आप wait करते रहोगे क्या? You have to be self-motivated. You should know that my vision is clear, my dream is clear, and लोग पता है सिर्फ तालियां बजाने आते हैं. पहले आपको अपनी मंजिल को खुद हासिल करके Absolutely. दिखाना पड़ता है. If mentor is not there, self-motivate yourself. सेल्फ Very true. मोटिवेशन Yeah. इज द बिगेस्ट थिंग. और एक्सटर्नल मोटिवेशन मैम खत्म भी हो जाएगी ना. सपोज आपका एक्सटर्नल मोटिवेटर और स्टिमुलेंट आपके पास जब तक है, तब तक तो आप मोटिवेटेड हो. फिर आप अकेले बैठ गए तो फिर आप डिप्रेशन में और लोनली हो गए. Point, So be everybody, please self-motivated. pick up this point. Very important. So self-motivation is another thing. Self-love, self-motivation, external sources की हमें जरूरत कम से कम पड़े. I agree, Shreya. Very true. और एक कोट लिखी थी मैंने कि पीपल ओनली सी द ग्लोरी, दे डोंट नो द बैक स्टोरी, which is full of hardships, full of challenges. Because God भी, अगर आप God में मानते हैं हम लोग, तो हम सब सेम है. जैसे क्लास में सब बच्चे होते हैं, कोई फर्स्ट आता है, कोई लास्ट आता है, टीचर तो सबको सेम चीज सिखा रहा है, वैसे ही गॉड है. अब वो आपको क्यों कुछ एक्स्ट्रा दे, वो आपको टेस्ट तो करेंगे ना. सो एवरी चैलेंज, आई डोंट कॉल इट अ डिफिकल्टी, आई कॉल इट अ चैलेंज. तो ये जो छोटे छोटे वर्ड अगर आप अपनी मेंटल डिक्शनरी में चेंज कर लोगे, जिंदगी स्मूथ हो जाएगी. सो एवरी Wow. चैलेंज is only a test of God to see whether you deserve that victory, whether you deserve that position. So वो चैलेंज जब पास हो जाता है, जो प्राइज मिलता है ना, वो मतलब एक्सपीरियंस ही है. मुझे तो बचपन से मिलता है. Absolutely, absolutely, Shreya. How people can take care of mental health? Top 3 points. Talk. The people should Yes. talk about their whatever they feel like. They should share everything. Eat. Talk. Eat Eat. well. And the third one is keep yourself active. Active. So talk, eat balance, and be active. Absolutely great. Now over to Shreya. आई वुड से दैट मैंने एक शेर लिखा है इसमें, अर्ज किया है, दिल की आवाज कहती है, अजीब है इंसान सभी, जो मिला उसकी कद्र नहीं करी कभी, जो नहीं मिला उसके पीछे है भागते, और जो छिन गया उसे वापस है मांगते. अजीब है इंसान सभी, जीना सीख रहे हैं अभी. सो आई वुड जस्ट से दैट फर्स्ट ऑफ ऑल कीप दिस थिंग इंटैक्ट इन योर माइंड दैट डेथ इज अ रियलिटी. हम लोग अपनी लाइफ को ना टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चल रहे हैं. सो जिस इंसान को पता है कि डेथ एक रियलिटी है, बाकी सब चीजें तो इल्यूजन है ना, करियर क्या होगा, शादी किससे होगी, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, क्या खाएंगे, वो सब इल्यूजन है, assumption है. डेथ तो आनी है, सबको पता है. तो जिसको डेथ की रियलिटी पता है, उसको जिंदगी से प्यार हो जाता है. आई एम नॉट सेइंग इट टू क्रिएट फियर, बट टू क्रिएट कंपैशन विद इन योर सेल्फ. सो आप हर मोमेंट को खुल के जीते हो, मजे में जीते हो, डिप्रेशन का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहे ना. अपनी सांस को भी नहीं ले रहे, किसी रिश्ते को भी नहीं ले रहे. यहाँ पर किसी एक गाना moment को याद भी आ नहीं रहा ले है, हर दिन ऐसा जियो जैसे कि आखिरी हो. Right. हर पल So जिए. that is the ultimate mantra, first of all, on a bigger vision. Then if you take pointers, so जैसे प्रतिभा जी ने कहा, it's very important to be active, exercise, because आजकल activity बहुत कम हो गई है, which is, you know, hampering your dopamine levels, happy hormones. Yes. Because when you exercise, they get activated in your body, and that release of that hormone, lowers your stress level,
and of course keeps depression at bay. Second point Correct. would be communication and understanding, which is very important. If you cannot communicate with your family or anybody, find a community. There has to be, and अगर वो भी नहीं मिलता तो मैं तो writer हूँ. Find a diary and communicate. Wow. Expression, आपके the पास हर vent is. माध्यम है करने के लिए कम्युनिकेट. जिंदगी में एनर्जी ऐसे ही है कि जो ताला बना है ना उसकी चाबी बनी है. हर चीज का कोई ना कोई Actually, चाबी है. So वो चाबी हम agree 100% ढूंढते with you, resonate with you. Yes, Shreya. थक जाते हैं, या तो कुछ लोग गिव अप कर देते हैं चाबी ढूंढते ढूंढते, बट चाबी तो हर एक की भगवान ने बनाई है. यू हैव टू फाइंड सॉल्यूशंस. सो ये सेकंड हो गया कि कम्युनिकेट करो, एक्सप्रेस करो, क्योंकि एक्सप्रेशन की ही आज टॉपिक भी और बात भी यही है. डिप्रेशन होता ही इसीलिए कि एक्सप्रेशन बाहर नहीं निकल रहा. अच्छा, एक चीज होता है, डिप्रेशन इज अ फॉर्म ऑफ अनएक्सप्रेस्ड लव. वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, बंडल ऑफ लव, इमोशंस. तो हमें ना अपना वो इमोशन निकालने के लिए कोई ना कोई जरिया चाहिए. तो वो रीजन है डिप्रेशन का कि वो अंदर ही कलेक्ट हो रहा है, प्रेशर कुकर की तरह. प्रेशर कुकर में अगर ज्यादा गैस भर जाए वो फट जाता है. सो एक्सप्रेशन का जरिया. अब वो एक्सप्रेशन का जरिया कोई इंसान हो गया, आपकी डायरी हो गई, कोई स्किल डेवलप कर लो, वहां पे भी आप एक्सप्रेस कर रहे हो. सिंगिंग के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हो, डांस के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हो, कुछ भी करो, एक्सरसाइज के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हो. वही बेसिक मंत्र है, दीज एक्टिविटीज. एंड द लास्ट पॉइंट इज, जैसा आपने बैलेंस डाइट का बोला, तो आई वुड जस्ट से दैट सेडेंटरी फूड की जगह, कुक्ड फूड की जगह ज्यादा लाइव सेल्स खाओ जो आपको वाइब्रेंट और एक्टिव रखते हैं. लाइव सेल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स. सो अगर जिंदा चीज खाओगे तो जिंदगी मिलेगी ना. तो ये जितना ब्रेड्स हो गया, नॉनवेज हो गया, कुक्ड फूड हो गया, ये डेड सेल्स हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर लाइव सेल्स. सो जो आप खाओगे वो आपको उसी तरीके की एनर्जी देगा, वाइब्रेंट रहोगे. सो दीज आर सम टिप्स व्हिच कैन हेल्प टैकल द डिप्रेशन. एंड फोर्थ ये है कि किसी के डिप्रेशन को अंडर एस्टिमेट मत करो और अपने डिप्रेशन से भी भागो मत, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल है. जैसे अगर आपके शरीर पे कोई चोट लगती है, आप गिरते हो, खून निकलता है, उसी तरीके से दिलो दिमाग पे ऐसे बहुत ट्रॉमास और चोट होती है जो दिखते नहीं है. तो अगर कोई कह रहा है आपके घर में, अरे यार क्या बकवास कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, वो मजाक नहीं कर रहा है, उसको सच में अंदर से गंदा फील हो रहा है. और खुद के उससे भी मत भागो कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है. So accept it. Acceptance is the first step to solve it. Depression is not making you mad. Depression और पागलपन दो अलग चीजें हैं. तो पहले तो ये कंफ्यूजन छोड़ दो. इंसान को खुद ही एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो डिप्रेस्ड है, लोनली है, सैड है. इसका ये मतलब नहीं वो पागल है. So ये confusion जो है ना, this was a term which was there 10 years, 15 years back. Now people have started understanding. That's the reason, श्रेया, मैंने ये शुरू में नहीं डिस्कस किया. Yes, अब लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि डिप्रेशन नाम की कोई दिक्कत होती है. Everyone it's a low phase in your life, that's all. Yes, low phase. But people do not take proper care of the people around them. And I would rather say they don't know how to take care. आज हमने बहुत सारी बातें डिस्कस की हैं. लोगों को अवेयरनेस होगी तो ऑटोमेटिकली आई थिंक एवरी हस्बैंड वांट्स टू सी हिज वाइफ हैप्पी. Every parent wants to see their children happy, and every children wants to see their parents happy. So the way we are connected with each other, we want to see each other happy. लेकिन कुछ situations ऐसी हैं शायद वो discussion से ही बाहर निकल कर आती हैं, like we did it today. Before we go, I would like to present one more last shairi for all of us to be more compassionate. I think Pratibha will also say Irshad. Yes, Irshad. दिल की आवाज कहती है, अर्ज किया है, तुम्हारी आंखों से बहे हुए अश्क, तुम्हारी आंखों से बहे हुए अश्क बयां करते हैं तुम्हारी दर्द भरी कहानी. तुम्हारी आंखों से बहे हुए अश्क बयां करते हैं तुम्हारी दर्द भरी कहानी. तो मेरी आंखों से झलके हुए आंसू तुमने कैसे मान लिए महज पानी. वाह, बहुत खूब. This will solve a lot of problems. Very nice, yes, actually. Very nice. Thank so you. I think इस शायरी के साथ, Shreya, I don't want to close the session. It's going wonderfully well, and I think all the audience is also enjoying it. रोकने का मन नहीं है, और तुम्हारी खूबसूरत शायरी के साथ तो बिल्कुल रुकने का मन नहीं कर रहा है. Want to go on and on, but I think we have a time crunch. Definitely, we would be again coming up with you in the upcoming sessions. Thank you for being here, Shreya and Pratibha. Thank you so much for giving us this platform, beautiful platform, and keep on shining.